all dear students, I hope you all are fine and safe at your home. So this is your lesson of computer science, and today we are going to learn a new topic in computer science, that is Microsoft Access. So now can anyone tell me what is the basic purpose of using Microsoft Access? Abdul Hadi, can you tell me? Right, Microsoft Access is basically your application program. Let me show you a screen, the interface of Microsoft Access. For that purpose, you have to click on the start button, all programs, Microsoft Office, and then Microsoft Office Access 2007. Okay, so this kind of interface will appear on your screen. Now what is the basic purpose of using Microsoft Office Access? Alishba, can you tell me? So in this lesson basically we are going to see the basic features of Microsoft Access, and then we will start working. So Alishba, can you tell me what is the basic function, basic purpose of using Microsoft Access? राइट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का बेसिक पर्पस क्या है कि इफ़ यू वांट टू मेक योर डेटाबेस, अगर आपने अपनी डेटाबेस क्रिएट करनी है ऑन एनी टॉपिक रिलेटिंग टू योर एनी मेथोडोलॉजी, देन यू कैन इजीली क्रिएट इट. फॉर एग्जांपल, लेट मी शो यू एग्जांपल कि पहले आपके पास क्या होता था कि आपके पास पहले अगर आपने डाटा को स्टोर करना हो, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है आपके पास अली अहमद, या एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, आपने उसके डाटा को मेंटेन करना है. व्हाट यू विल डू, आप रजिस्टर्स लेके उस पर आप डिफरेंट कॉलम्स बनाएंगे पेन के थ्रू. ठीक है, पेन यूज़ करेंगे, पेंसिल यूज़ करेंगे, डिफरेंट कॉलम्स बनाएंगे. एक कॉलम बनाएंगे आप सीरियल नंबर, एक बनाएंगे स्टूडेंट का रोल नंबर का कॉलम, फिर आप बनाएंगे एक नेम, फादर नेम, फिर मदर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, इस तरह के आप मल्टीपल कॉलम्स बनाएंगे. ठीक है, अब सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है इन इस तरह से काम करने का, कि अगर आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि छोड़ जाता है आपका स्कूल, या जो कि अवेलेबल नहीं है आपकी क्लास में, सो इफ़ यू वांट टू इरेज इट, तो आपको सिंपली उसके ऊपर कट करना पड़ेगा या इरेजर से इरेज करना पड़ेगा. सो इससे क्या होगा कि आपकी जो सीरियल नंबर है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी. उसमें जो सीक्वेंस आप फॉलो कर रहे हैं 1 2 3 4 के हिसाब से, इट विल ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब. सो इसमें अब आपने करना क्या है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटाबेस, कि हम इसमें इजीली डिफरेंट स्टूडेंट्स के डाटा को मेंटेन कर सकते हैं. जैसे आप एक्सेल में करते हैं, एक्सेल का बेसिक पर्पस क्या है, if you want to do the calculation then you can use Microsoft Access. Similarly, if you want to make a database, then you can use Microsoft Access. If you want to maintain a large amount of record of your students, of your faculty, of your members, staff members, then you can easily maintain in Microsoft Access. So here, as you will see, here we have multiple templates. If you want to choose any one of them, you can choose it. So simply for now we are going to select this blank database. हम इस blank database पर click करेंगे. If you want to change the name, you can change it, and if you want to change this location, कि आपकी ये फाइल कहाँ पर जाके सेव होगी, then you can simply change it. Is it clear? Okay, so फिलहाल this database is named as database 2. I will click on this option of create, and as you can see कि अब मेरे पास जो मेरी फाइल है वो सेव हो चुकी है. अब हमने इसमें काम करना क्या है. For example, here you will find multiple tabs. जैसे आपके पास Microsoft Excel में different tabs हैं, PowerPoint में different tabs हैं. Similarly, we have also different tabs relating to your data, कि आपके पास डाटा किस किस्म का है और आपने अपने डाटा को किस तरह से सेव करना है, मैनेज करना है, and how you want to manipulate. Okay, so first of all, let's see about Home tab. So Umaima, can you tell me what is the basic purpose of using Home tab? Right, Home tab is basically used if you want to maintain your data. मतलब अगर आपने अपने डाटा में बेसिक एडिटिंग करनी है,
बेसिक फंक्शंस अप्लाई करने हैं, लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इफ़ यू वांट टू सेट द अलाइनमेंट, इफ़ यू वांट टू डू द कॉपी पेस्ट, इफ़ यू वांट टू चेंज सम वर्ड विद अनदर, इफ़ यू वांट टू डू द फाइंड एंड रिप्लेस, then you can do this with the help of home tab. Is it clear? After that we have create. Now what is the meaning of create? Vania, can you tell me what is the meaning of create? Yes, right. Create tab is basically used अगर आपने अपने फॉर्म को क्रिएट करना है, right? If you want to create table, if you want to create report, if you want to design your form, तो इससे related जितने भी आपने task perform करने हैं, you have to use this tab of create. Is it clear? Okay, after that we have the next tab, that is external data. Now what does it mean, external data? In this lesson basically we will get the overview of Microsoft Access and then we will see how it works. हम database किस तरह से create कर सकते हैं, उसमें हम data को store कैसे कर सकते हैं, and then at the end how we can access that stored data. So now what is the use of third tab, that is your external data. Haram, can you tell me what is the function of external data tab in Microsoft Access? Right, as you can see the name is also clear, external data. ऐसा डाटा जिसमें आप इजीली अपनी फाइल्स को ऐड करवा सकें. इफ़ यू वांट टू इंपोर्ट योर फाइल्स, अगर आपने अपनी फाइल्स को इंपोर्ट करवानी है या एक्सपोर्ट करवाना है डिफरेंट फाइल्स में, एक्सेल से डाटा उठा के अगर आपने इसमें एक्सपोर्ट करवाना है, देन वी कैन यूज दिस टैब. सो हेयर यू विल फाइंड मल्टीपल ऑप्शन कि आपके पास डाटा किस फॉर्म में है, टेक्स्ट फॉर्म में है, पीडीएफ फाइल में है, वर्ड की फाइल में है, एक्सेल की फॉर्म में है, देन यू कैन यूज दिस टैब. आफ्टर दैट वी हैव डेटाबेस टूल्स. नाउ व्हाट डज इट मीन, डेटाबेस टूल्स? Fatma, can you tell me what is database tools? राइट, डेटाबेस टूल्स दैट मीन्स अगर आपने डिफरेंट डाटा के दरमियान किसी किस्म की रिलेशनशिप शो करनी है, इफ़ यू वांट टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट डाटा, लाइक अगर आपने एक क्लास का डाटा मेंटेन किया हुआ है, फिर आप दूसरी क्लास का डाटा मेंटेन करना चाह रहे हैं, अब डिफरेंट क्लासेस में अगर डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, वो सिबलिंग्स हैं, आप इसमें बहन भाई हैं, तो आप इनके डाटा को आप इसमें लिंक करवा सकते हैं. आफ्टर दैट एट द एंड वी हैव डाटा शीट. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ data sheet? Fatma, can you tell me what is the basic purpose of using data sheet? Right, डाटा शीट इज़ बेसिकली यूज्ड कि अगर आपने अपने डाटा में किसी किस्म की एडिटिंग करनी है, इफ़ यू वांट टू लुक व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ योर डाटा, हाउ इट विल बी शोन ऑन योर स्क्रीन, and how you want to maintain your different columns, different fields, how we want to adjust your existing data, then you can use this tab. So this is basically your data sheet. Okay, so now here we have office button. Now what is the basic purpose of office button? Abdullah, can you tell me? Abdullah Ibrahim, what is the basic purpose of using Microsoft Office button? राइट, ऑफिस बटन दैट मीन्स कि इसमें आप अगर बेसिक आपने चेंज करना है, इफ़ यू वांट टू टेक न्यू पेज, इफ़ यू वांट टू ओपन योर प्रीवियसली स्टोर्ड फाइल, इफ़ यू वांट टू सेव योर फाइल and if you want to save it as your name, right? If you want to make some basic changes in your file, then you can do this in Microsoft Access. Like if you want to save your file, if you want to save as your file, अगर आपने print लेना है उसका, अपनी file का, अपनी sheet का, and if you want to make it as your email, if you want to send it to some other person, then you can easily do this. Is it clear? Okay.
So after that, now this is the basic overview of Microsoft Access कि Microsoft Access में जो different tabs हैं उनका basic purpose क्या है. We have here Home tab, Create tab, External Data tab, Database Tools, and at the end Datasheet tab. So this whole bar will be known as your menu bar because it provides you a different or a lot of variety of different menus. So this is known as your menu bar. Is it clear? Okay, so can anyone tell me what is this complete blue bar known as? कि आपके पास ये जो इतना टॉप का एरिया है जिसमें आपके पास डिफरेंट टैब्स हैं, इस कंप्लीट एरिया का क्या नाम है? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन. हमजा, कैन यू टेल मी? Anas, can you tell me? Right, this is known as your ribbon bar. This is known as your ribbon bar. Okay, so here we have two more tabs at the bottom of your screen. The first one is your, this one, as you can see, this is written here, record 1 of 1. If you want to do some search, if you want to filter your data, then you can use this tab. So now what is the use of this tab, or what is the name of this tab? Abdul Hadi, can you tell me? Right, this is known as your status bar. इसको सिंपली हम क्या बोलेंगे? स्टेटस बार, जो कि आपको स्टेटस शो कर रहा है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की इस फाइल में कितने वर्ड्स टाइप किए हैं, कितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन है, हाउ मेनी कॉलम्स, हाउ मेनी रोज यू हैव, एंड व्हाट यू आर वर्किंग. सो इट विल शो you the basic status whatever you are doing in Microsoft Access. Is it clear? Okay, so now we will move next how we can maintain, how we can make our table. In this lesson we are going to learn now a basic introduction how we can maintain or make a table in Microsoft Access and how at the end we can get the result. Okay, so as you can see, this kind of interface will appear on your screen. If you want to make your table, if you want to make it as your design, what you have to do, आपने क्या करना है, आपने क्लिक करना है on this view tab. आपके पास यहाँ पर है व्यू फीचर, इस पर आपके पास एक ऑप्शन आ रही है डिजाइन व्यू, आपने इस पर क्लिक करना है. दिस काइंड ऑफ इंटरफेस विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन. इस किस्म का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर अपीयर होगा. अब हम किस तरह से इसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं, लेट्स सी. So first of all, as you can see here, we have field name, data type and data description. This is the most important task what you have to do in Microsoft Access. So as you can see, there is written ID. Now what do you mean by ID? What is ID? Umayim, can you tell me what do you mean by ID? फील्ड नेम में आपके पास लिखा है ID. राइट, ID का मतलब है कि जब एक स्टूडेंट किसी स्कूल में या किसी भी कंपनी में इनरोल होता है या कोई भी पर्सन इनरोल होता है तो उसको एक स्पेशल ID असाइन की जाती है. राइट, जो ID उसको डिफरेंट कर देती है बाकी तमाम स्टूडेंट से. बिकॉज हम अगर किसी स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, उस स्कूल में अब्दुल्ला नाम के डिफरेंट स्टूडेंट्स हो सकते हैं. क्लास 1 में भी हो सकते हैं, क्लास 2 में भी, क्लास 3 में भी. समटाइम एक क्लास में 3-3, 4-4 अब्दुल्ला नेम के स्टूडेंट्स हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हर स्टूडेंट को एक एक ID असाइन कर देंगे. ठीक है, वो ID कोई भी नंबर हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, जिस तरह से आपको आपके रोल नंबर्स असाइन हैं. नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है डाटा टाइप. नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. लाइक व्हाट डू यू मीन बाय डाटा टाइप? Hania, can you tell me what do you mean by data type?
राइट, डाटा टाइप के मतलब आपके पास वो जो डाटा है उसकी टाइप क्या है, वो किस किस्म का डाटा है। अब अगर आप कोई नंबर एंटर कर रहे हैं, कोई भी 55 अगर आपने एंटर किया तो 55 आपके पास क्या है, उसकी टाइप क्या है, क्या वो नंबर है आपके पास, या वो टेक्स्ट है, या कोई पिक्चर है, या कोई वीडियो है, या कोई सिंबल्स हैं, करैक्टर्स हैं, क्या है वो। सो हेयर यू हैव टू मेंशन द टाइप। सो आईडी आपके पास मोस्टली किस में होगी, व्हाट इट विल बी, ऑटोमेटिकली इसको साइन है बाय डिफॉल्ट ऑटो नंबर के। अगर कोई आईडी है तो आपने कोई भी पॉइंट है उसको आपने असाइन कर दिया नंबर। सो यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं कि उसको आपने क्या असाइन करना है। आईडी आपकी कैसे हो सकती है, समटाइम कुछ आईडीज ऐसी होती हैं जिसमें डिफरेंट अल्फाबेट्स भी यूज हुए हैं, तो आप उसमें टेक्स्ट चूज कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू मेक इट एज योर नंबर देन चूज हियर नंबर। देन हियर इन द डिस्क्रिप्शन फॉर्म यू विल फाइंड, डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिप्शन। Ali, can you tell me? राइट, डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि यहाँ पर आपने उसको डिस्क्राइब करना है कि आपके पास वो जो आईडी है, वो जो नंबर है, वो क्या चीज़ है। दिस कैन बी जस्ट फॉर यू, कि आप उसे अपने पर्पस के लिए डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो आपके पास क्या चीज़ है। इज इट क्लियर। सो यहाँ पर इसमें मैं फिलहाल कुछ टाइप नहीं कर रही हूँ। आफ्टर दैट आईडी के बाद एक स्टूडेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज नेम। सो आई विल मेक अ कॉलम हेयर विद द नेम। किस नेम से मैंने कॉलम डिजाइन किया, नेम। अब जो स्टूडेंट का नेम होगा, अब स्टूडेंट का नेम किस तरह से हो सकता है, क्या वो कोई नंबर होगा, उसकी डाटा टाइप क्या होगी, इट विल बी अ नंबर और टेक्स्ट और सम करैक्टर्स, व्हाट काइंड ऑफ टाइप इट विल इंक्लूड इन नेम। फातिमा, कैन यू टेल मी। राइट, आपके पास जो नेम होगा वो आपके पास टेक्स्ट की फॉर्म में होगा। इज इट क्लियर। सो जो नेम है वो उसको आपने हमेशा चूज करना है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, बिकॉज अली, अहमद, फातिमा, ये सब आपके पास डिफरेंट अल्फाबेट लेटर्स हैं, डिफरेंट वर्ड्स हैं। लेटर से जब वर्ड मिलेंगे तो वो आपके पास एक लेटर से डिफरेंट वर्ड्स मिलकर एक वर्ड बनाएंगे। सो वो आपके पास क्या होगा, एक वर्ड। सो जो वर्ड होगा दैट विल बी नोन एज योर टेक्स्ट। इज इट क्लियर। आफ्टर दैट आई विल राइट हियर फादर नेम, फादर्स नेम। सो फादर्स का नेम किस में हो सकता है, राइट, इट विल ऑल्सो इन टेक्स्ट फॉर्म। आफ्टर दैट आई विल मेक वन मोर कॉलम दैट इज मोबाइल नंबर। इज इट क्लियर। आई विल राइट हियर मोबाइल नंबर। सो अब जो मोबाइल नंबर है उसकी डाटा टाइप क्या होगी, it will be text or some number or some special characters, what it will be, right, ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास numbers होगा, right. So I will choose here number. If you want to make it as a text then you can also choose, because text में भी आपके पास अगर आपने dash choose करनी है then you can choose it. So for now I'm just going to choose this option of number. Is it clear? Okay, after that I have next column. I will make one more field with the name of address. Is it clear? अब address की data type आपके पास क्या होगी, अलिशबा can you tell me? You have to tell me, अलिशबा. Right, address आपके पास टेक्स्ट फॉर्म में होगा, बिकॉज एड्रेस में आपके पास डिफरेंट नंबर्स भी आ सकते हैं। लाइक अगर किसी का होम एड्रेस है 54 ब्लॉक ए, तो इसमें 54 आपके पास क्या है, नंबर, और ब्लॉक ए आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं। सो वी विल मेक इट एज योर टेक्स्ट। इज इट क्लियर? ओके, सो फॉर नाउ आई विल जस्ट मेक these 5 columns and now I will just click here on this option of data sheet and as you can see कि यहाँ पर आपके पास वो टेबल क्रिएट हो चुका है with the name of ID, name, father name, mobile number, address. Is it clear? So इस तरह से आप अपने डाटा को easily maintain कर सकते हैं।
So for now what you have to do, you just have to watch this video very carefully and do the practice how we can open Microsoft Access, what is the basic purpose of using Microsoft Access, how we can insert or how we can make basic columns in Microsoft Access. So just watch this video. If you find any difficulty, then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom.